चाइना में, उस वक्त उनकी एज 50 ईयर्स थी, 50 साल। क्या कोई इमेजिन कर सकता है 50th ईयर के एज में कोई आदमी इस लेवल का गेम खेलने जा रहा है? पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको ना बोला, लेकिन जब उन्होंने फाइट किया उनके साथ, ये कह के कि फिटनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एज इन गेम्स, इन स्पोर्ट्स। और यही जो फिटनेस की बात है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और उस वक्त वो सिर्फ खेलने नहीं गए, खेलने के साथ साथ वो सिल्वर मेडल भी लाए। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ सिल्वर मेडल लाया, उन्होंने इस गेम में गोल्ड मेडल भी लाया हुआ है, जिसको आज तक किसी ने ब्रेक नहीं किया है। मतलब कोई दूसरा गोल्ड मेडल उस गेम में, जिसका नाम यॉटिंग है, नहीं आया है। और यॉटिंग में अगर आपको पता होगा, आप पतवार वाली नाव के साथ रेस करते हैं, जिसमें आपको दो नेचुरल पावर्स के साथ फाइट करना होता है। वन इज द विंड, जो समुद्र में चलती रहती है तेज हवाएं, और दूसरा द वेव्स, जो लहरें होती हैं। सो लेट्स वेलकम फरूक तारापुर। फरूक, आपके वाइज स्टेटमेंट्स। Thank you, Manoj, and good evening, everyone, and welcome to this exciting Friday session. I hope everyone's had their early dinner and probably done some exercise at least, because exercise is such an important aspect of good holistic health that it can never be neglected. And I can never say enough as to the amount of exercise that is required. It doesn't matter whether you're in the office, whether you are a sports person, you're not a sports person, but you need to find a way around this exercise. So today I'm going to, narrate a slightly hilarious form of why exercise is necessary. And it will probably, some of these things will probably get you going as to your procrastination over exercise here. Now, just imagine your body is a small town. The main troublemakers in this town are cholesterol. They have some accomplices too. The main partner in crime is triglyceride. Now, we've often spoken about triglyceride and how salmon omega is extremely good for this triglyceride. But what is the job of these triglycerides? Their job is to roam the streets, causing chaos and blocking the roads. Can you imagine? Now, the heart is your city center of this town. And all roads will lead to the heart. When the troublemaker increases and in big numbers, you know what happens? What happens like in a normal town? They try to disrupt everything and disrupt the heart function. But our body, town, has a police force also. Okay, consider your body as a town, as I said, and it also has a police force. HDL is the good cop who arrests the troublemakers and puts them behind bars. And what is this behind bars? Your liver. Okay. The liver then throws them out of the body through the drainage system. However, there's a bad cop too, LDL. All right. When this LDL releases, this LDL who's power hungry releases the troublemakers from jail and puts them back on the streets. Who were the troublemakers earlier? The triglycerides. Okay. When the good cop HDL is outnumbered, the town becomes chaotic. Who likes living in such a town? Do you want to reduce the troublemakers and increase the good cops? Start working. With every step, the good cop HDL will increase and the troublemakers, cholesterol, triglyceride, and LDL will decrease. Your town body will regain vitality as soon as you start walking. Your heart, the city center, will be safe from the troublemakers. And when your heart is healthy, you will be healthy soon. So guys, I hope this will get you to start walking.
because if you don't, then your troublemakers and the bad cop will increase, and your body, which is your town, will become chaotic. So let's have a healthy body by taking some small steps towards your holistic fitness. Thank you. Today you're going to be listening to, somebody who's made a tremendous transformation from somebody who never believed that she could do it. She joined the community, followed things, very, very, to the last detail, and has made such a huge transformation that whatever she has to say will really have a significant impact on your health. So listen to Veda, who's going to, really talk about this subject. Over to you, Veda. Farooq, actually, I think you got some kuch galat. Can't hear you. Manoj, you're on mute. Okay. I'll be doing the presentation today. Oh, sorry. So anyhow, listen to Manoj. Okay. Thank you. Just a sec. Yeah, let me share the slides. Okay. Are slides visible? Yeah, they are visible. Okay. तो वॉकिंग है ना, तो ये एक पहलू है लिफ्ट 360 का, जैसे कि फरूक ने बताया. एंड लेट मी टेल यू, बिकॉज अभी फरूक ने एक वॉकिंग जो एक वर्ड दे दिया, उसके ऊपर से बताऊं मैं आपको. आई लॉस्ट अराउंड मोर देन 40 kgs इन 1 year, और उसमें सिर्फ वॉकिंग मैंने पार्ट डाला था. एज फार एज एक्सरसाइज गोज, एक्सरसाइज के मतलब मेरे सिर्फ वॉकिंग था, और वो अभी तक है. सिर्फ वॉकिंग कर करके और थोड़ा बहुत आपके लाइफस्टाइल में, खाने में चेंज करके, नींद के पैटर्न में चेंज करके, आप अपने लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो. ओके, तो लेकिन आज हम किसी और एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे, एंड दैट एस्पेक्ट इज कि हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, इन सारी बातों के ऊपर से. और इसको हम अपने बॉडी के इनर क्लॉक के साथ किस तरह से अलाइन करें. ओके, तो इनर क्लॉक अभी हम थोड़ी देर के बाद आएंगे. फिलहाल हम इसके ऊपर सिर्फ बात करते हैं कि हमें क्यों खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, और जो हम सारा खाएंगे उस एनर्जी को हमें कहाँ पे रिसोर्स करना चाहिए, कहाँ पे उसको हम यूज करना चाहिए. ओके, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. और जब आप ये सारी चीजें सोच के खाते हो, तो इसको बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग साइकिल. मतलब आप जो भी काम कर रहे हो उसके ऊपर आपने थॉट डाले हुए हैं, अपने दिमाग से कुछ कुछ चीजें डाली हैं उसके अंदर, ताकि आपको उसका इफेक्ट मिले जो आप सोच रहे हो. तो आप क्यों खा रहे हो, आप सोचिए कि आप जीने के लिए खा रहे हो, खाने के लिए जी रहे हो. आप कब खा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. कई चीज अभी हम आपको बताएंगे, क्या चीज खाने के लिए अच्छा है, क्या चीज खाने के लिए गलत है. लेकिन अगर आपने सही चीज भी गलत टाइम पे खा ली, उससे उससे आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला. आप क्या खा रहे हो, इसके ऊपर हम अब ज्यादा बात करेंगे. कैसे खा रहे हो, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे. कितना खा रहे हो, ये भी मायने रखता है. क्योंकि आजकल अगर आप देखोगे, ये जो आपको ओबेसिटी है, मोटापा है, ये बेसिकली हाउ मच के ऊपर ही बहुत ज्यादा है. हाउ मच और क्या खा रहे हो, व्हाट के ऊपर ही बहुत ज्यादा है. ये सारी चीजें, लेकिन बाकी चीजें भी हैं. और उन एनर्जी को आप कहाँ यूज कर रहे हो. पहले मैं खाने के बाद बिस्तर में उसको यूज करता था, सो जाता था, है ना. अब ऐसा नहीं है. और यहाँ पर आपको सब कुछ सीखने मिलेगा, सब कुछ समझने मिलेगा. अगर आप देखेंगे अगली स्लाइड में, तो आपको दिखेगा कि बेसिकली है जो हम जो भी खाएं, लाखों तरह की डिशेस होंगी दुनिया में, है ना. अगर आप किसी घर पे भी देखोगे,
तो कई चीजें बताएं। अगर मैं उनको पूछता हूँ कि आप क्या क्या खाते हो घर पे, तो कई चीजें आती हैं लिस्ट में, लेकिन घुमा फिरा के जो हमारा शरीर जानता है वो सिर्फ ये 6 चीजों को जानता है। मोटा मोटा 2 कैटेगरी, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आपको खाने में एक क्वांटिटी ज्यादा लगती है, जिसको आप तकरीबन तोल सकते हो, ऐसा बोल सकते हो, आप उसको वे कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसे आप बेसिकली मेजर नहीं कर सकते। वो इतने छोटे अमाउंट में, इतने टाइनी अमाउंट में होते हैं कि आपको शायद दिखना भी मुश्किल है ना? इतना छोटा अमाउंट में होता है, वो जल्दी से दिखेगा नहीं आप। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में 3 चीजें आती है बेसिकली, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट जो आपके बॉडी को एनर्जी देता है, प्रोटीन जो आपके शरीर को बनाने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उसका है ना? जो आपका शरीर है, बाल से लेके नीचे नाखून तक, हर चीज में प्रोटीन का पार्ट है। फैट्स बहुत सारे काम आता है। अगर आप अपने ब्रेन को देखोगे तो ब्रेन भी एक फैट में, उसमें बहुत मेजर कंपोनेंट है। आपका हार्ट उसमें मेजर कंपोनेंट है, आपका स्टमक में बहुत बड़ा कंपोनेंट है। तो फैट भी आपके शरीर को बनाने के लिए काम आता है, उसके अलावा बाकी सारी चीजों के लिए बहुत सारा काम आता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट बेसिकली बहुत टाइनी अमाउंट में रहते हैं, लेकिन वो आपकी फंक्शनिंग को बहुत इफेक्टिवली करने के लिए सपोर्ट करते हैं। आप इसको इस तरह से देखिए, एक तलवार है, किससे बनता है? लोहे से, लेकिन उसकी धार है। तलवार और तलवार की धार, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। तलवार बनाने के लिए आपको लोहा लगेगा, हमारे शरीर को बनाने के लिए आपको प्रोटीन लगेगा, फैट लगेगा, पानी लगेगा, लेकिन उसकी धार को बनाने के लिए आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लगेंगे। जैसे एक आंख और आंखों की रोशनी, 2 अलग अलग चीजें। आंख सबके पास है और रोशनी हर एक इंसान के पास उतनी शार्प नहीं है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बेसिकली इन चीजों के लिए काम आता है। वो बेसिकली विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स बेसिकली वो चीजें हैं, फाइटो मतलब प्लांट, पेड़, जो पेड़ से आते हैं, पेड़ पौधों से आते हैं। कलर में आज ज्यादा करके आपको दिख जाएगा। आप उसको इस तरह से देखिए, ठंड आती है हम स्वेटर पहन लेते हैं, बारिश आती है हम रेनकोट ओढ़ लेते हैं, समर आता है हम पतले लेनिन और कॉटन वाले कपड़ों पे चले जाते हैं। क्या कभी पेड़ ऐसा करते हैं? पेड़ पौधे ऐसा करते हैं? नहीं। वो कितनी भी धूप हो वहीं खड़े हैं, कितनी बारिश हो वहीं खड़े हैं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब उनके अंदर जरूर ऐसे ऐसे कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीजें हैं जो हमें हमारे खाने में होनी चाहिए, और इसी को सबको मिलकर बनता है बैलेंस डाइट। आगे आते हैं। अब ये बात आ जाती है कि हमें बेसिकली ये चीजें खानी है तो हमें कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगा अगर आपने अपने थाली को एक सही प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दिया। तो सही प्रोपोर्शन में क्या हो सकता है? ये स्लाइड में फिगर्स लिखे हैं, आप उसको देख सकते हो। मोटा मोटी आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक पार्ट में सब्जियां, एक पार्ट में आपके फ्रूट्स, एक में आपके पल्सेस और एक में आपके ग्रेन्स, है ना? अगर आप ग्रेन्स को देखोगे, देखो हम गड़बड़ क्या करते हैं। आखिरी पे देखिए आप, सीरियल्स लिखा है 20%। सीरियल्स मतलब जो गेहूं और चावल जो हमारे बेसिक खाने हैं। इस पे आप पोहा को भी मत समझिएगा कि पोहा कहीं बाहर का है, पोहा भी सीरियल्स में आ गया, वो चावल से बनता है। रवा, अगर आप उपमा खाते हो तो ये मत समझिएगा कि नहीं हम तो कुछ और खा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, आप वही सीरियल खा रहे हो, क्योंकि रवा भी गेहूं से बनता है। अगर हम अपने दिन भर का एक नॉर्मल इंडियन आदमी के, इंसान का अगर प्लेट देखेंगे तो मोर देन 50% वो सीरियल खाते हैं, जबकि बैलेंस डाइट वाला चार्ट ये बताता है कि वो 20% के आसपास होना चाहिए। उसके ऊपर देखिए आप, क्या हम वेजिटेबल एंड वेजिटेबल्स को क्या हम 30% खाते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आप दिन भर में समझो 2 किलो खाते हो तो क्या आप 600 ग्राम के आसपास वेजिटेबल खाते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं कई लोगों को पूछता हूँ, बोलते हैं हम पाव किलो लाते हैं, 3 आदमी खाते हैं। इमेजिन करिए कहाँ से मिलेगा आपको। तो ये प्रोपोर्शन है, इस प्रोपोर्शन में अगर आप खाओगे तो यू विल गेट द बैलेंस डाइट, और आपके बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो मिलेंगे पूरे पूरे। तो अब इसमें सबसे पहले जो आता है आपका सबसे पहला मील, जो कि सुबह सुबह का होता है, जिसको हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं। उसमें क्या होना चाहिए? और वो पहले इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रात भर आपने काम किया है, सॉरी, रात भर आपके बॉडी ने काम किया है। उसके बाद आगे थोड़ा बात करेंगे कि क्यों ये मील ऐसा अच्छा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, आपको क्या ऐड करना चाहिए इसके अंदर, लेकिन वो खास बात जानने लायक। आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब यूज करना है ना। कॉम्प्लेक्स कार्ब मतलब क्या होता है?
कॉम्प्लेक्स कार्ब मतलब वो जो डायरेक्ट आपके बॉडी को एनर्जी देना नहीं चालू करे, जो आस्ते आस्ते एनर्जी दे, जिसके अंदर थोड़ा फाइबर की मात्रा ज्यादा हो, वो है कॉम्प्लेक्स कार्ब। जैसे जवारी, बाजरी, रागी, होल व्हीट, ब्राउन राइस, है ना। पॉलिश राइस की बात नहीं कर, ब्राउन राइस, होल व्हीट, मैदा की बात नहीं कर रहा, है ना। मिलेट्स की बात कर रहे हैं, जवार, बाजरा, रागी, इन सब चीजों के ऊपर। ओके, प्रोटीन हमें सुबह सुबह अच्छा लेना चाहिए, क्योंकि हमें अगेन, क्यों के ऊपर हम बाद में जाएंगे, फिलहाल आप खाली इसी प्रोटीन आपको ज्यादा लेना है। कहाँ से मिलेगा आपको? अगर आप वेजिटेरियन है तो मूंग, चना, स्प्राउट्स आपको मिल जाएगा। दाल से मिलेगा, बीन्स है, लेंटिल्स है, राजमा हो गए, चना, होल चना हो गया, ओके, दालें हो गई। नट्स में आपको मिल जाएंगे, है ना, पीनट्स है, आलमंड्स है, उसके ऊपर हो गए। आपको नॉन वेज मिल जाएगा, दूध में, चिकन में, अंडे में, है ना। आपको वेजिटेबल और फ्रूट्स आपको सुबह खाने। तो अगर आप ये तीनों चीजें आप अच्छी क्वांटिटी में खाओगे, मतलब रिक्वायर्ड क्वांटिटी, अच्छी क्वांटिटी नहीं, अगर कार्ब्स खा रहे हो तो कार्ब्स, ऐसा नहीं कि आप खाते ही जाओ दबा के, ऐसा नहीं। अगर आप एक बैलेंस करके खाओगे तो आपको दिन भर एनर्जी बनी रहेगी, और उसके अलावा भी बहुत सारे फायदे होंगे। आपको निकालना क्या है? निकालना वो चीज जो आज ज्यादा करके हमने ऐड कर रखी है अपने लाइफ, रिफाइंड कार्ब। ना, रिफाइंड कार्ब क्या होता है? जितनी भी चीजों को आप रिफाइन करोगे ना, वो सफेद बन जाएगी। मैदा, तो मैदे का ब्रेड को आप निकाल सकते हो, शक्कर को निकाल सकते हो, चावल को निकाल सकते हो, पॉलिश चावल, ओके, रिफाइंड ऑयल को निकाल सकते हो। तो जिस भी चीज के आगे रिफाइंड लग गया हो, आप उसको निकाल दीजिए, ओके। उसी तरह सैचुरेटेड फैट, वो फैट जो नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर से थोड़ा नीचे टेम्परेचर हुआ तो वो जम जाए, उस फैट को आप निकाल दो, ठीक है। तो ये चीजें आपको आपके फर्स्ट मील में नहीं होनी चाहिए। तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसको आप निकाल के उसके जगह पे कुछ ऐड कर दोगे। तो आप क्या निकालोगे? आप कैलोरी डेंस फूड को निकाल दोगे, कैलोरी डेंस फूड को निकालोगे और न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड को ऐड करोगे। मुझे कभी कभी ना एक याद आता है, कई साल पहले की बात है, तकरीबन 2000, मेरे ख्याल से 5-6 की बात है। उस वक्त मेरा एक दोस्त ने मुझे पूछा सुबह सुबह नाश्ते में क्या क्या, ही इज फ्रॉम मेरठ, हीरो बनने के लिए बंबई आया था, वेल बिल्ड, स्मार्ट लुकिंग गाय। उसने मुझे पूछा, मनोज क्या खाया सुबह नाश्ते में? ऐसे बात निकली। मैंने बोला साबूदाना खिचड़ी। और अब इमेजिन करिए, उस वक्त मैं 100 तकरीबन 102 kg के आसपास था, डाइट मेरी अच्छी खासी थी। मैंने बोला आज मैंने साबूदाना खिचड़ी खाई। मुझे आज समझ में आ रहा है कि मैं एक अकेले साबूदाना खिचड़ी को अगर आज मैं कैलोरी में कन्वर्ट करता हूँ, दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 1400 to 1500 कैलोरी जो मैं खा रहा था उस वक्त। और मेरे दोस्त ने मेरे को बोला, अरे वाह, आज तो तूने बड़ा हेल्दी खाना खाया। मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन मुझे वो टाइम में पता नहीं था कि हमें हेल्दी खाना नहीं खाना है, हमें न्यूट्रिशियस खाना खाना, हमें हाई इन कैलोरी नहीं खाना है, हमें लो इन कैलोरी खाना है। हमें कैलोरी डेंस फूड अगर आप निकालोगे, वो तो उससे फायदा ये होगा कि आपके जो ज्यादा कैलोरी खाने की वजह से जो आपको लो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे, आपको हाई न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे न्यूट्रिएंट डेंस फूड में। कैलोरी डेंस फूड क्या करेंगे? आपको तुरंत एनर्जी देंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको भूख लग जाएगी। लेकिन न्यूट्रिएंट डेंस फूड आपको तुरंत भूख नहीं लगने देंगे। अगर आपने अच्छा प्रोटीन रिच खाना खाया तो आपको काफी देर तक भूख नहीं लगने देगी। इसी तरह से कैलोरी डेंस फूड की वजह से आपको लाइफस्टाइल डिजीज हो सकती है, आपका वेट बढ़ सकता है, उस पर आपको लाइफस्टाइल डिजीज नहीं होंगी, मतलब आप उनसे बहुत दूर रह सकते हो, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, आप मोटापा आपके नजदीक नहीं आ सकते। और आपको इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा ये है, जो आपको अगली स्लाइड में दिख सकता है, ये रहा। आप अगर एक ब्रेड पकोड़ा खाते हो, है ना, जिसमें आपको 300 कैलोरी मिलता है, प्लेन कैलोरी, नथिंग एल्स, उसके जगह पे अगर समझो आपने 2 कप पाइनएप्पल और 1 कप ब्लूबेरी खाया, तो आपको भी 300 कैलोरी ही मिलेगा, लेकिन इसके साथ में कई और न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे जो आपके सेहत के लिए काफी अच्छे हैं। सो हमें क्या नहीं करना चाहिए?
इन चीज़ों के लिए हमें रिफाइंड शुगर नहीं खाना चाहिए, हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हमें स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए, हमें दारू नहीं पीना चाहिए, अल्कोहल मतलब स्पिरिट है ना, दारू एकदम लेमन लैंग्वेज है। हमें स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, हमें कैफीन से जितना हो सके दूर रहना चाहिए, हमें प्रोसेस फूड से नहीं खाना खाना चाहिए। प्रोसेस फूड से दूर रहने का मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा आइडिया देता हूँ, है ना। दो प्लांट होते हैं, एक पी फॉर प्लांट और दूसरा भी पी फॉर प्लांट है, लेकिन एक प्लांट होता है पेड़ पौधे, है ना, और दूसरा प्लांट होता है फैक्ट्री। अगर जो अकाउंट्स वाले होंगे उन्हें पता होगा, जो साइंस वाले होंगे उन्हें पता होगा। तो एक प्लांट होता है पेड़ पेड़ पौधे और दूसरा प्लांट होता है फैक्ट्री। जो पेड़ पौधों से आता है चीज उसको खाइए, और जो पी फॉर प्लांट फैक्ट्री से जो दूसरा आता है उससे मत खाइए, क्योंकि वो प्रोसेस फूड होता है। तो पी फॉर प्लांट जो फैक्ट्री से होता है वो प्रोसेस फूड है, उसे नहीं खाइए। एकदम सिंपल है समझने की, प्रोसेस फूड क्या है और बिना प्रोसेस फूड क्या है। ओके, कैलोरी डेंस फूड आपने नहीं खाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नींद। आपको कितनी नींद लेनी चाहिए और कब नींद लेनी चाहिए वो पता होना चाहिए। ओके, और हमें करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि प्रेफरेबल भी जहां तक हो सके आपको डे लाइट में खाना चाहिए, मतलब सुबह उठने से सूरज ढलने से पहले या सूरज ढलने के टाइम तक आपके खाने में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अच्छे खासे क्वांटिटी में होने चाहिए। आपके खाने के अंदर प्रीबायोटिक होना चाहिए। प्रीबायोटिक एक छोटे सेंटेंस में समझा देता हूँ। प्रीबायोटिक आपके जो पेट में कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए खाना है ना। तो अच्छे बैक्टीरिया की अगर आपको क्वांटिटी बढ़ानी है आपके पेट के अंदर या फिर नहीं घटानी है, तो आपको प्रीबायोटिक अपने खाने में यूज करना चाहिए। जैसे कि हम करते ही हैं, दही वगैरह जो है वो उसमें आ गया। फ्रेगमेंटेड फूड जो हम खाते हैं जैसे इडली हो गया, तो उसमें आता ही है। पानी पीते रहिए, ना एकदम ज्यादा ना एकदम कम। अगर आप इसमें जो हमने करने की बातें बोली हैं, अगर आप हमारे सारे सेशन को अटेंड करोगे तो इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसके ऊपर से हमने इलेबोरेट किया हुआ। तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपने यहाँ पर आते रहना और यहाँ पे सुनते रहना, ताकि आपको इसके बारे में डिटेल में मिलता रहे। आपको खाना चबाना है, अच्छे से चबाना है। इसके ऊपर हम आज डिटेल में थोड़ा और बात करेंगे। आपको फाइबर रिच फूड खाना है, आपको इनफ स्लीप लेनी है, आपको एक्सरसाइज करना है ना। सोने से पहले 2 घंटे के 2 घंटे पहले अपने खाना खाना, मतलब आखिरी खाना खाने के 2 घंटे पहले ना सोए तो ज्यादा अच्छा है। आपको अपना स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए रिलैक्सेशन मेथड को अपनाना पड़ेगा। और जो खाना खा रहे हो वो हेल्दी नहीं खाना है, न्यूट्रिशियस खाना। ओके, अब आ जाते हैं हमारे एक पॉइंट के ऊपर कि हमें खाना कैसे खाना चाहिए। तो उसके ऊपर है चबाना। सबसे पहले हम चबाने के ऊपर रहेंगे, है ना, च्यूई करना। हमें ज्यादा से ज्यादा देर तक खाने को च्यू करना चाहिए। हिंदुस्तानियों में तो एक बात फेमस भी है कि आपको 32, एक निवाला अगर आपने मुंह में डाला तो उसे आपने 32 बार चबाना है। 32 से कहां से आए? शायद हमारे 32 दांत होते हैं तो इसलिए कहा होगा कि हर एक दांत के पास जाना चाहिए उसने। बट जो भी हो, साइंस ये बताता है कि कई चीज जो आप खाते हो, तो जैसे ही आपने उसको चबाया, उसके टुकड़े किए, और जैसे उसके टुकड़े हुए, साथ में आपके मुंह ने सलाइवा उसके अंदर छोड़ दिया, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन वहीं से चालू हो जाता है। इमेजिन करिए, अगर आपने निगल दिया कार्बोहाइड्रेट, जो कि आज की डेट में सबसे ज्यादा कल्प्रिट है हम लोगों के लिए, हम जैसे मतलब खास कर मेरे ऐसे लोगों के लिए जो बहुत जल्दी मोटे हो गए थे और मोटे हो जाते हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर ही हमारा ऐसा है। कार्बोहाइड्रेट अगर पहले से ही पचना चालू हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं पचना चालू हुआ तो फिर वो गलत जगह जाके बैठ जाए। तो चबाने से ही हमारा वहां से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन चालू हो, इसलिए खाना को चबाना बहुत जरूरी है। आपको ज्यादा चबाने से आपका डाइजेशन के प्रोसेस में फायदा मिलता है, जिसकी वजह से आपके न्यूट्रिएंट्स आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कैलोरी को कम कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पानी का इंटेक बढ़ जाता है। ये क्योंकि हमारा पानी का इंटेक बढ़ जाता है और डाइजेस्ट हम अच्छी तरह से कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से डायबिटीज और
बाकी जो मेटाबॉलिक डिजीज हैं उसका उसका आपके लाइफ में आने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं आएंगे तो आपके ओवरवेट रहने के चांसेस कम हो जाते हैं। और क्योंकि आपने अच्छे से पचाया, अच्छे से पचा लिया, चबा के पचा लिया, तो बार बार आपको भूख नहीं लगेगी। और क्योंकि बार बार भूख नहीं लगेगी तो आप फालतू का खाना नहीं खाओगे, स्नैकिंग जिसको बोलते हैं कि ये खा लिया, चटर खा लिया, पटर खा लिया, कुछ भी, वो आप नहीं करोगे। अब आपको स्लो खाना खाना है, चबा चबा के खाना खाना है, तो उसके लिए 4 गुरु मंत्र हैं। सबसे पहली चीज कि आप खड़े होके नहीं खाएं, बॉक्स में रख के नहीं खाएं, बैग में रख के नहीं खाएं, कार्टन में रख के नहीं खाएं। क्यों? क्योंकि जब ऐसा खाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी जल्दी खाना है, तो आपको पता भी होगा कि मुझे स्लो स्लो खाना है, लेकिन आप उस वक्त जल्दी जल्दी खाओगे, क्योंकि कुछ सिग्नल्स आपको, आपके बॉडी को ना, आपके वर्ड्स नहीं देते हैं, आपके बॉडी के बिहेवियर देते हैं, यानी आपके एक्शंस भी आपको कुछ सिग्नल देते हैं। तो वो नहीं करिए। ऐसा खाना खाइए जिसे चबाने में टाइम लगे, है ना, जो आसानी से सीधा निगलना ना पड़े। जिसको खाने के टाइम पे ऐसी कोई चीज के ऊपर काम ना करें जिससे आपका खाने से माइंड डाइवर्ट हो, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि आपने कितना खा लिया, पता नहीं चलता कि आपको चबाना है, आप मुंह में डाल के निगल जाते हैं। और सबसे बढ़िया चीज जो मैंने भी ट्राई किया, जब पहली बार सुना तो मुझे लगा शायद सही नहीं है, आप जब एक निवाला मुंह में डालते हो, एक बाइट अगर आपने मुंह में डाला, चम्मच को छोड़ दो, चम्मच को नीचे छोड़ दोगे, आपको तुरंत निवाला लेने की जल्दी नहीं रहेगी। अगर आपने चम्मच हाथ में रखा है, आप देखोगे आप तुरंत जल्दी निवाला दूसरा दे देते हो, तो ये भी आपके ईटिंग को थोड़ा डिले करता है। तो इन 4 चीजों से आप अपने खाने को स्लो स्लो खा सकते हो। अब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हेन टू ईट एंड लिसन टू योर इनर क्लॉक। ये जो इनर क्लॉक की बात हम करते हैं, वो अभी आपको समझना है। होता यह है कि सनराइज से सनसेट तक हमारे बॉडी कई हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारा इस पीरियड में मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन और मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है। इस वक्त जो भी हम खाते हैं, जो भी हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलता है, उससे हमारे जो भी हम काम करते हैं, उस काम को एफिशिएंटली करने के लिए सपोर्ट करता है। और जब रात होती है, मतलब सनसेट से लेकर सनराइज के बीच में, उस वक्त हमारी बॉडी चली जाती है रिपेयर मोड। हम उस वक्त कुछ काम नहीं कर रहे होते, हमें कुछ उतना अलर्टनेस नहीं चाहिए होता, उस वक्त हमारी बॉडी अपने आप कुछ काम कर रही होती है। बेसिकली और रिपेयर एंड रीबिल्ड आप उसको बोल सकते हो। रात के टाइम पे वो होता है, एक ऐसे काम करता है। आप देखिए, इनर क्लॉक बेसिकली क्या है कि आपके घर पे, आप इसको इस तरह से एग्जांपल लीजिए कि आपके घर पे कहीं से एक मीटर बॉक्स लगा होगा, जहाँ पे आपके घर पे पावर आया हुआ है, वो एक मेन बोर्ड में गया होगा, और फिर मेन बोर्ड से आपने उसे कनेक्शन घर पे पूरे फैला दिए होंगे, है ना। वो आपके टीवी भी चला रहा होगा, वो आपका मिक्सर भी चला रहा होगा, हो सकता है वो आपका इंडक्शन जो स्टोव है उसको भी चला रहा होगा, वो आपके फैन को भी चला रहा होगा, वो आपके आयरन को भी यूज करने के लिए आपको पावर सप्लाई कर रहा है। इसी तरह से हमारे बॉडी को, जब हमारे बॉडी के अंदर जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उनका भी अलग अलग टाइम है काम करने का। वहां से तो हमको लाइट मिल गई है, एनर्जी मिल गया, लेकिन अलग अलग ऑर्गन अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ये बेसिकली 3 चीज के ऊपर डिपेंड रहता है, लाइट यानी एनर्जी, दूसरा जो हम खाना खाते हैं, और तीसरा जो एक्सरसाइज। इन 3 चीज के ऊपर डिपेंड रहता है। तो ये किस तरह से काम करता है? अगर आपकी बॉडी फंक्शन आपके बॉडी क्लॉक के हिसाब से अगर चल रहे, तो आपको बहुत अच्छी स्लीप क्वालिटी है। मतलब ये सारी चीजें आपके लाइफ में चेंजेस होती हैं बॉडी क्लॉक के हिसाब से। स्लीप क्वालिटी, माइंड का अलर्टनेस, स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल करना, ग्रोथ हार्मोन को बैलेंस करना, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, डाइजेशन को रेगुलेट करना बराबर से, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, हार्ट रेट और हंगर, इन सारी चीजों को बॉडी क्लॉक करता है। इन सारे फंक्शन को बॉडी क्लॉक कंट्रोल करता है। इमेजिन करिए कि आप का बॉडी फंक्शन किसी और काम पे काम कर रहा हो,
और आपका बॉडी क्लॉक कुछ और कर रही है, क्या आपके शरीर की हालत होगी। इस तरह से इसको देख सकते हो आप कि अगर एक बैलगाड़ी के 2 बैल हैं, एक बैल आगे जाने की कोशिश कर रहा है और दूसरा बैल बोल रहा है नहीं मैं यहीं खड़े रहूंगा, तो उस बैलगाड़ी की क्या हालत होगी और उस बैलगाड़ी को चलाने वाले की क्या हालत होगी। यहाँ पर अगर दोनों बैल सेम तरीके से चल, मतलब जैसा आपका बॉडी क्लॉक है उसी तरह से अगर आपका बॉडी का फंक्शन हो, तो वो फंक्शन बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, जो राइट साइड का जो ब्लू कलर है वह है आपका नाइट का टाइम, सनसेट का टाइम से लेकर सनराइज का टाइम, और जो लेफ्ट साइड है येलो कलर, वो है सनराइज से सनसेट का टाइम। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे कि रात के टाइम पे कई ऐसे हार्मोन बॉडी छोड़ता है जिसकी वजह से आपको नींद अच्छी आती है, जिसकी वजह से आपका बॉडी का रिपेयर का काम होता है, आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है, आपके माइंड में उतनी अलर्टनेस नहीं रहती है, बिकॉज आपको जरूरत नहीं है, आपको रिलैक्स करना है, अलर्ट नहीं रहना है। और जब डे टाइम होता है तो कई ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सबसे अच्छा दूंगा कि सुबह सुबह इंसुलिन रिलीज होता है। अगर सुबह सुबह इंसुलिन रिलीज होता है तो इंसुलिन ने करना क्या है, इंसुलिन ने करना ये है कि आपके बॉडी को जो ग्लूकोज मिलेगा, जो शुगर मिलेगा, उसको बॉडी के हर सेल तक पहुंचाना है उसको। लेकिन अगर आप सुबह खाओगे ही नहीं, सोए रहोगे, तो इंसुलिन कर क्या लेगा, कुछ नहीं कर सकता। रात को आपको सोने के टाइम पे एक हार्मोन रिलीज होता है कोर्टिसोल जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से आपको नींद अच्छी आएगी, लेकिन आप सोए नहीं तो क्या हो, तो सारा मिसमैच हो जाता है। तो इसीलिए अगर हमको ऑप्टिमाइज करना है अपने हेल्थ को, तो ये दोनों बॉडी फंक्शन और बॉडी क्लॉक, ये दोनों मैच होने चाहिए। किस तरह का फूड हमें खाना चाहिए अपने बॉडी क्लॉक के हिसाब से। अगर आप रात को खाते हो, है ना, इमेजिन करिए आपने रात को फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इवनिंग टाइम पे खा लिया, क्या रात को यूज करेगा उसको? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी तो रिपेयर मोड में गई है। वो कहाँ से डाइजेस्ट कर लेगा उसको, कहाँ से अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा उसके न्यूट्रिएंट्स? नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो आपको सन के सामने लिखा है कि फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये अगर आपने सुबह सुबह खा लिया तो ये आपके दिन भर में काम करने के लिए आपको अच्छे न्यूट्रिएंट्स देंगे, जिससे आपकी इफेक्टिविटी बढ़ेगी, आपका अलर्टनेस बढ़ेगा, आपकी एनर्जी बनी रहेगी, है ना। लेकिन रात के टाइम पे सब काम नहीं करेगा। इसीलिए रात के टाइम पे आप ज्यादा ना खाओ। ज्यादा क्या, वैसे तो अगर स्ट्रेट सेंटेंस में पूछा जाए तो नहीं खाओ तो बहुत अच्छा है ना। अब अगली स्लाइड, हमें सुबह ही क्यों खाना चाहिए, सुबह का खाना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसको समझने के लिए आपको 4 पैरामीटर समझने के लिए, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन, इंसुलिन और गट बैक्टीरिया। मेटाबॉलिज्म बेसिकली डाइजेशन, प्रोटीन जो कि हमारा एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, और गट बैक्टीरिया जो आपके पेट को बैक्टीरिया को, गट बैक्टीरिया बेसिकली समझना यह है कि हमें जो अच्छे बैक्टीरिया बुरे बैक्टीरिया हैं उनका बैलेंस। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म बेसिकली ये है कि जब आपने खाना खाया तो जो एनर्जी आपको मिली तो वह एनर्जी यूज हो जाए, बराबर है। इसको उल्टा देखिए, सुबह उठे, आपने काम करना है, आपको एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए आपने खाना खा लिया। एग्जाम्पल से, आप जब कार में फ्यूल भरोगे तभी तो कार चलेगी ना, अगर आपको कार चलानी है तो। उसी तरह से सुबह उठे आपने, आपके बॉडी को अभी आपने एक्टिवली काम करना है आपके बॉडी ने, तो आपको एनर्जी चाहिए। और सुबह सुबह आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म, जो डाइजेशन सिस्टम है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्प्शन करने का सिस्टम है, ये बहुत पीक पे रहता है। तो सुबह सुबह अगर आपने ये काम कर लिया तो आपको बहुत अच्छा उसका फायदा मिलेगा। अगर आपने ये काम रात को कर दिया तो उसका कुछ मतलब है क्या? कुछ मतलब नहीं है। इस एग्जाम्पल में देखिए, कई फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ रात में रिपेयर करने के लिए काम करती हैं, या फिर अगर कोई फैक्ट्री अगर फुल कैपेसिटी में भी चल रही है तो रात में वो लोग कम काम करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ उसका एक हिस्सा रहता है जो लोग रिपेयर करते रहते हैं, मेंटेनेंस करते रहते हैं, वो जरूरी होता है। अगर वो नहीं करेंगे तो पूरा सिस्टम किसी दिन कोलैप्स हो सकता है, जो नहीं चाहिए किसी को। उसी तरह से आपको भी नहीं चाहिए कि आपकी बॉडी कोलैप्स हो। तो डे टाइम पे आपने अच्छा एनर्जी लेना है, मेटाबॉलिज्म अच्छा है, वो आपको उससे फायदा मिलेगा। दूसरे पे आ जाते हैं, प्रोटीन।
प्रोटीन इस सुबह और रात का चक्कर क्या है, रात भर आपकी बॉडी रिपेयर मोड पे, तो जितना भी प्रोटीन आपके बॉडी में था वो बॉडी पूरा यूज कर लेती। अब सुबह सुबह आपके बॉडी ने काम करना है, आपके बॉडी को प्रोटीन चाहिए, तो सुबह सुबह अगर आप नहीं खाओगे तो एनर्जी कहाँ से रहेगी आपके, क्योंकि मेटाबॉलाइज तो सुबह सुबह करेगा ना प्रोटीन अच्छे तरह से, तो इसलिए सुबह सुबह प्रोटीन खाना ज्यादा अच्छा है। रात को खाना है उतना नहीं खाना है, और रात को इनफैक्ट कि सूरज ढलने से पहले या सूरज ढलने के आसपास। प्रोटीन की शॉर्टेज सुबह रहती है, रात भर रिपेयर मोड में जाने के बाद, तो उस तरह से आपको करना है। इंसुलिन, जैसे कि मैंने सुबह अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इंसुलिन क्या काम करता है। इंसुलिन, आपने जो भी खाना खाया उसकी एनर्जी को शुगर में कन्वर्ट हुई, तो हर एक शुगर को जो एनर्जी है उसको शुगर हर एक सेल तक ले जाता है, और जब हर एक सेल तक आपके बॉडी में अगर शुगर अच्छे से पहुंच जाए, मतलब शुगर मतलब एनर्जी, आगे मत समझिएगा शक्कर के दाने जा रहे हैं, नहीं, एनर्जी अगर शरीर के बॉडी तक जाएगा, शरीर के हर सेल तक जाएगा, तो आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी। अब सुबह सुबह इंसुलिन बन रहा है, उस वक्त अगर आपने नहीं खाया तो क्या फायदा। आप बोलोगे नहीं मैं तो रात को खाऊंगा आराम से, उसके बाद सोऊंगा, लेकिन रात को तो कुछ काम हो ही नहीं रहा, वो रात को तो इंसुलिन है ही नहीं, इंसुलिन रिलीज ही नहीं हो रहा बॉडी में, तो कहाँ जाएगा शुगर। सुबह सुबह ब्लड चेक करोगे तो आपको दिखेगा हाई ब्लड शुगर। तो आप समझ रहे होंगे कि सुबह सुबह इंसुलिन की मात्रा ज्यादा रहती है बॉडी के अंदर, तो सुबह सुबह खाना ज्यादा अच्छा है रादर देन रात के। अब आ जाते हैं चौथा पार्ट, चौथा गट बैक्टीरिया। गट बैक्टीरिया में दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक अच्छे बैक्टीरिया, एक बुरे बैक्टीरिया। सुबह सुबह के टाइम पे अगर आपने खाना खा लिया तो गुड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और बैड बैक्टीरिया कम हो। अगर आपने नहीं खाया तो आपको इसका उल्टा हो सकता है, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां आपको आ सकती हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आप सुबह सुबह खाएं, ज़्यादा अच्छे से खाएं। अगर आपने इस स्लाइड में अगर आप देखोगे कि अगर आपने अच्छे बैक्टीरिया को खा लिया तो आपके बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया की क्वांटिटी बढ़ेगी, और बुरे बैक्टीरिया को अगर आपने अच्छे बैक्टीरिया नहीं खाया और अच्छे बैक्टीरिया खाना भी नहीं भेजा अपने पेट के अंदर, तो बुरे बैक्टीरिया को चांस मिल जाता है अपना क्वांटिटी बढ़ाने का। तो नॉर्मल जो परसेंटेज होता है वो होता है 85 एंड 15, बुरे बैक्टीरिया 15 और अच्छे बैक्टीरिया 85। अगर आपने जिसका भी बीमारी, अगर जिसको किसी को बीमारी रहती है उसे गट बैक्टीरिया को अगर आप देखो तो रिवर्स प्रोपोर्शन, ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसलिए आपको जो 4 पैरामीटर जो बताए हैं कि सुबह का मॉर्निंग न्यूट्रिशन, सुबह का खाना का जो मिलने वाला आपको न्यूट्रिशन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके 4 पैरामीटर हैं। मेटाबॉलिक रेट जो कि आपका हाई रहता है, इंसुलिन आपकी सुबह सुबह ज़्यादा अच्छी रहती है, आपका गट बैक्टीरिया आपको सुबह सुबह ज़्यादा ऑल्टरेट होते हैं। अगर अगर आपने अच्छे बैक्टीरिया खा लिया, अच्छे बैक्टीरिया पेट में डाल दिया, अच्छे बैक्टीरिया खाना आपने डाल दिया पेट में, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और प्रोटीन का बैलेंस बनाने के लिए काम आ जाता है। तो इन 4 के वजह से आपको सुबह का खाना, जिसको हम मॉर्निंग न्यूट्रिशन बोलते हैं, वो होना चाहिए। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको रेगुलर इनटेक ऑफ ब्रेकफास्ट करना है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी हेल्दी रहे। क्योंकि अगर आपने रेगुलर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अच्छा कर लिया तो आपके बॉडी को अच्छा प्रोटीन सपोर्ट मिल जाएगा, आपको अच्छी मेटाबॉलिज्म मिल जाएगी, अच्छा एनर्जी आपको मिलेगा, आपके गट बैक्टीरिया का रेशियो अच्छा रहेगा, और जो कुछ आपने खाया है बॉडी जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगी, और शुगर लेवल भी मेंटेन रहेगा। लेकिन यही काम अगर आपने रात को कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, या फिर नहीं किया सुबह सुबह, उससे आपको कई हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो जो कि हमारी आखिरी स्लाइड हमेशा होती है, करना क्या है, हम करना ये है कि अच्छे हर दिन को हम एक अच्छा दिन के साथ और एक ग्रेटिट्यूड के साथ हम शुरुआत करें, हम एक न्यूट्रिशियस फूड खाएं, हमारे जो गोल्स हैं वो एकदम क्लियर होने चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि हमारे गोल क्या है। कोई नई चीज हम रोज सीखें, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सरसाइज एवरी डे। तो इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। मैं जानना चाहूंगा कि किसी पास कोई सवाल है। Anybody wants to
कोई सवाल कोई पूछना चाहता है? आई थिंक इसका कोई सवाल नहीं है. So we'll end this session over here. Thank you very much. Good night.